বহু প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। এতদিনের অপেক্ষার পর রামলালা নিজের জায়গায় পৌঁছালেন। দেশ জুড়ে রীতিমতো আনন্দের জোয়ার তৈরি হয়েছে। দেশ ছাপিয়ে সেই আনন্দ এখন বিদেশের মাটিতেও পৌঁছে গেছে। কিন্তু এবার যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো, কবে তৈরি হবে অযোধ্যার মসজিদ? তার উত্তর এবার মিলেছে। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিনেই মসজিদ তৈরির ঘোষণা করে দেয় ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন। জানানো হয়েছে মে মাস থেকেই শুরু হবে মসজিদ তৈরির কাজ। ক্রাউড ফান্ডিং কবে থেকে শুরু হবে নির্মাণ কাজ? সময় লাগবে বছর চারেক। এবার কথা হলো, ক্রাউড ফান্ডিং কেন? আসলে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য 1800 কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও এই মসজিদ নির্মাণের জন্য কোনো টাকাই নেই। তাই ক্রাউড ফান্ডিং এর মাধ্যমে যে টাকা উঠবে তা থেকেই এই মসজিদটা তৈরি হবে। আইআইসিএফ প্রধান হাজি আরাফাত শেখ জানিয়েছেন, মসজিদের নাম হবে মসজিদ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিনেই সামনে আসে এই তথ্য। একজন স্থানীয় ব্যক্তি কি বলছেন শুনবো। बहुत दिन से रह रहे हैं। अब हमारी 40+ हो रही है उम्र, तो पुश्तैनी जगह है पहले से। हाँ ये पुश्तैनी, हाँ पुरखे भी रह रहे हैं यहाँ पे। कितना बदलाव आप देख पाए हैं धन्नीपुर में जब से मस्जिद का फैसला आया था, यहाँ मस्जिद बनेगी। 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या उम्मीद थी और अभी तक क्या स्थिति नजर आती? अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, अभी यहाँ 3-4 साल हो गए जमीन दिए हुए, अभी इस पे कोई कार्य इस पे चालू हुआ नहीं है। और वही बगल में हमारे यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर राम जन्मभूमि है। हमारे जो मोदी साहब हैं, सबका साथ सबका विकास, अब हमें तो नहीं लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा हुआ होता तो उधर राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो साथ साथ यहाँ का भी कुछ विकास करते वो। এখনো কোনো কাজ চালু হয়নি। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল রাম মন্দির হবে ওই জমিতে, মসজিদের জন্য পৃথক জায়গা দেওয়া হবে, আর সেই নির্দেশেই ধন্যীপুরে তৈরি হবার কথা মসজিদ। উল্লেখ্য, 2019 সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুসলিম পক্ষকে দেওয়া 5 একর জমিতেই তৈরি হবে দেশের সবচেয়ে বড় মসজিদ। তবে কবে থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হবে এই মসজিদের, সেই সম্পর্কে কিন্তু একটা ধোঁয়াশা ছিলই। সোহরাব সোনাওয়াল বিশেষজ্ঞ কি বলছেন এই বিষয়ে শুনবো। शुरुआत 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जमीन 2-3 जगह दिखवाई ट्रस्ट वालों को, और जिसमें से इस जमीन को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पसंद किया और इस जमीन को फिर प्रशासन ने अलॉट किया 5 एकड़। और फिर उसके बाद नक्शा बना, वो जो ओल्ड नक्शा लगा हुआ है, नक्शा बना। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई नक्शे की विकास प्राधिकरण में दाखिल करने की। फिर उन्होंने पहले ऑफलाइन मांगा, एनओसी 15 एनओसी मांगी। फिर उसके बाद कहा नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन एनओसी दीजिए। फिर ऑनलाइन एनओसी का प्रक्रिया चली, ऑनलाइन हो गया। उसके बाद फिर नक्शा जब जाके फाइनल हुआ, फाइनल नक्शा पास हुआ, तो शायद शुल्क बहुत अधिक मांग रहे थे। उतना ट्रस्ट में भी पैसा ही नहीं आया था कि शुल्क दे सके, क्योंकि राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बने बहुत पुराना हो गया। और चंदा तो जब मामला कोर्ट में था तब से चंदा बटोरा जा रहा था 25-30 साल से, तो वहाँ पैसों का फंड का तो कमी है नहीं। यहाँ तो अभी 2019 के बाद ये ट्रस्ट बना इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन बना। तो अभी 4 साल हुआ ट्रस्ट बने, और उसके बाद फंडिंग तो अभी आने में टाइम तो लगेगा ही, तो फंडिंग की भी प्रॉब्लम हो गई। এবার এলো নির্মাণ কাজ শুরুর পদক্ষেপ। 2024-এর মে মাসে শুরু হবে এই মসজিদ নির্মাণ কাজ। ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট অযোধ্যার ধন্যীপুরে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে তহবিল সংগ্রহের কাজ। এজন্য বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ করা হবে ইনচার্জ। আগামী বছর মে মাসে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে বলেই আশা করছেন ট্রাস্টের সভাপতি জাফর আহমেদ ফারুকি। মসজিদের নকশায় আমূল পরিবর্তন ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরুতে দেরি হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
মসজিদটির প্রাথমিক নকশা ভারতে নির্মিত মসজিদের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছিল, পরে সেটা বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন নকশা তৈরি হয়েছে। মসজিদটি আগে 15,000 বর্গফুটের পরিবর্তে 40,000 বর্গফুটের ওপর নির্মিত হবে। মসজিদের সঙ্গে থাকবে কমিউনিটি কিচেন, গবেষণা কেন্দ্র, হাসপাতাল, লাইব্রেরি এবং একটা মিউজিয়াম। এছাড়া অফিস ঘর, থাকার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। প্রসঙ্গত আপনাদের বলি, 2019-এর 9 নভেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার বিতর্কিত জমি রাম মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করে। 1992-এর 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই জমিতে বাবরি মসজিদ ছিল। শীর্ষ আদালত সেদিন মসজিদ তৈরির জন্য অযোধ্যা শহরে বিকল্প জমি বরাদ্দ করার নির্দেশ দেয়। উত্তরপ্রদেশ সরকার অযোধ্যা শহর থেকে 22 কিলোমিটার দূরে ধন্যীপুরে মসজিদের জন্য 5 একর জমি বরাদ্দ করে। আমাদের প্রতিনিধি অভিষেক মিশ্র কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন এই বিষয়ে, আসুন শুনি। ये विवाद शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर के, जो विवाद स्थल था जिसको एक महकमा विवाद स्थल कहता था तो दूसरा महकमा राम जन्मभूमि बताता था, और उस पर जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर इस धन्नीपुर के इलाके में दी। अब इस फैसले को आए 5 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन मौजूदा स्थिति में आखिर धन्नीपुर में क्या कुछ हुआ है। मस्जिद को लेकर के लगातार जो कमेटी काम कर रही थी, जो पूरी बॉडी इसको बनाने की बात कह रही थी, उसने भी समय समय पर इस पर काम किया, लेकिन फिलहाल के तौर पर क्या स्थिति वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये मस्जिद प्रस्तावित है। ये जगह जो आप पीछे देख रहे होंगे, यहां से लेकर के मेरे दाहिने ओर तक ये पूरी जो जगह है ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को दी गई है, जो कि इस मस्जिद को बनाएगा। इस पूरी जमीन पर जो प्रस्तावित मस्जिद होने वाली है उसमें मस्जिद तो होगी, लेकिन उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर, एक अस्पताल, अब तो एक किचन भी बनाया जाना है, कम्युनिटी किचन, और तमाम तरह की चीजें यहां पर रखी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मस्जिद में अभी तक कहां तक पहुंच पाई है ये पूरा फाउंडेशन और क्या कुछ हो रहा है। दरअसल इस पूरे मस्जिद को लेकर के पहले एक नक्शा बनाया गया। वो नक्शा कुछ अलग तरीके का दिखाई देता था। उस नक्शे को एक मॉडर्न आर्ट की शक्ल में रखा गया था, लेकिन जब वो नक्शा प्राधिकरण, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास पहुंचा तो जो उसका शुल्क था वो काफी ज्यादा था, लगभग 1.25 करोड़ के लगभग उसका शुल्क था। बताया गया कि अभी जो संस्था है उसके पास में इतना फंड नहीं है, फंड की कमी के चलते फिलहाल अभी वो इस स्थिति में नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में इस मस्जिद के नक्शे को अप्रूव कराया जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन इसके साथ में एक आपत्तियां लोगों की ये भी थी, जो पुराना डिजाइन था वो मॉडर्न आर्ट का तो था, लेकिन वो मस्जिद की शक्ल में नहीं था, वो मस्जिद की याद नहीं दिलाता था, वो अपने खुदा के इस्तकबाल करने के लिए जो एक माहौल होता है वो नहीं दे रहा था। तब उसके बाद में चीजें बदली और उसके बाद में इस मस्जिद को एक नया डिजाइन दिया गया, वो अब हम आपको दिखाते हैं। अब इस मस्जिद की जो शक्ल है, इस मस्जिद का जो डिजाइन है वो बदला गया और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जा रहा है, और सीधे तौर पर अगर समझे तो धन्नीपुर में बनने वाले इस मस्जिद को ताजमहल की खूबसूरती के स्तर का बनाने की बात कही जा रही है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब इसका नाम रखा गया है। इस नाम के साथ में अब ये धन्नीपुर की पहचान बनेगी, यहाँ के लोगों की पहचान बनेगी, और इसके साथ ही साथ इस बात की तस्दीक भी करेगी कि किस तरीके से इस मस्जिद का काम एक पूरे इस मुस्लिम समाज और आसपास के लोगों के लिए एक नई रोशनी भी लाएगा और एक नया मौका भी लाएगा तरक्की करने का। इस मस्जिद के ठीक बगल में दरगाह भी है, बहुत पुरानी, बहुत मशहूर ये दरगाह है। लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी आरजू लेकर के आते हैं। लेकिन इस इलाके की आरजू अब यही है कि मस्जिद का काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि कुछ तरक्की हो सके, और इसके आगे बढ़ने की बात फिलहाल कही जा रही है। पिछले साल नवंबर में मस्जिद विकास समिति के एक नए प्रमुख हाजी अरफात शेख सामने आए हैं। ये महाराष्ट्र से हैं और माना जाता है बीजेपी के नेता हैं, और इसके साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया की आर्किटेक्चर फैकल्टी और पूर्व डीन रहे प्रोफेसर MS अख्तर ने धन्नीपुर मस्जिद के लिए एक नई योजना पेश की, और उसी का प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 4500 वर्ग मीटर में ये बनाई जाएगी, और इसमें एक सामुदायिक किचन, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी होगा। अब ये बात कही जा रही है कि जो मस्जिद बनेगी ये इतनी खूबसूरत होगी कि आगरा के ताजमहल से भी बेहतर दिखेगी, और इसका जो लुक होगा वो दुनिया को एक मिसाल पेश करेगा।
আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।